مسیح کے بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آج صبح سنڈے سروس پر میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند کا گھر خداوند کے لوگوں سے بھرا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے چند لمحات میں، پھر اس کے بعد 10 بجے جو ہماری ایسٹر یعنی ریزریکشن سروس ہوگی، اس میں ہم کتاب مقدس کو ظاہری طور پر، دیدنی طور پر، باطنی طور پر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھے گا، متی رسول کا انجیلی بیان یسوع المسیح کی بابت، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی چند آیات کریمہ۔ کتاب مقدس میں سے متی رسول کا انجیلی بیان یسوع المسیح کی بابت، اس کا 28واں باب، جو کہ گنتی کے لحاظ سے اس انجیل کا آخری باب ہے، اس کی پہلی چند آیات کریمہ۔ کتاب مقدس میں یوں مرغوب ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو بھرتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ 5ویں آیت، فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ کتاب مقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ کتاب مقدس کا یہ اقتباس جو بھی ہم نے تلاوت کیا ہے، کتاب مقدس میں یہودی دستور کے مطابق یا یہودی روایت کے مطابق ہفتہ کا پہلا دن اتوار کا دن ہے، جو آج کا دن ہے، اور لکھا ہے پو بھرتے وقت، یعنی اسی وقت 5 سے 6 کے درمیان پو بھرتے وقت جب سورج نکلنے کو تھا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کچھ عورتیں خوشبودار چیزیں لیے ہوئے قبر کی جانب روانہ ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صبح اٹھ کر نہیں، بلکہ ہفتے کی رات کو ہی، سبت کے دن میں ہی انہوں نے اس کی تیاری کی، اور پھر ہفتہ کے پہلے دن یعنی سبت کے بعد پہلے دن یعنی اتوار کے دن انہوں نے اس خوشبودار چیزوں کو لیا جو یہودی دستور کے مطابق روا تھا کہ تیسرے دن قبر میں جو مردہ ہو اس کو خوشبودار جو چیزیں ہیں یا مسالہ جات ہیں وہ لگایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیقودیمس جب یسوع کو قبر میں اتارا گیا تو نیقودیمس نے 100 پاؤنڈ کے گرام 100 پاؤنڈز اس نے اونٹ ملا ہوا مول لیا اور یسوع کی قبر پر لے کر گیا، اور اس کے ساتھ 2 اور تھے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ دستور ہے، یہودی روایت ہے کہ تیسرے دن قبر پر جایا جائے اور اس قبر کے اوپر جو مردہ ہے اس قبر کے اندر اس کو اس خوشبودار چیزیں اس قبر پر رکھی جائے، لگائی جائے۔ لیکن یہ ہم نے سوچ بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اس پتھر کو
जो भारी भरकम है उसको कौन हटाएगा। कई दफा हम यीशु के साथ चलते हुए सोचते हैं कि ये जो रात की रुकावट है, यीशु के साथ मिलने में, एनकाउंटर करने में जो रुकावट है, इसको कौन हटाएगा हमारे लिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि खुदावंद के फरिश्ते हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार होते हैं जब आप यीशु की तलाश के लिए जाते हैं। रात की रुकावटें, पत्थर, यीशु अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि हटाए। बाइबल मुकद्दस ज़बूर 91 में लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। और यहाँ पर नजर आता है कि खुदावंद ने उनकी बाबत फरिश्तों को हुक्म दिया और वो फरिश्ता ना सिर्फ उन्होंने पत्थर को लुढ़काया बल्कि उस पत्थर के ऊपर बैठ गए जिस पर रोमी मोहर लगी थी कि इसको कोई ना तोड़े, और उसके ऊपर वो फरिश्ता बैठ गया। मैं ये समझता हूँ कि फरिश्तों में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत का, ना किसी इंसान का, ना किसी हैवान का, ना शैतान का। वो सिर्फ डरते हैं तो खुदावंद खुदा से डरते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर फरिश्ता ने ना सिर्फ पत्थर को लुढ़काया बल्कि बड़े आराम के साथ पत्थर के ऊपर बैठ गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका चेहरा जो है वो बिजली की मानिंद है और सफेद है। हालेलुया। खुदावंद ने उस बुराक पोशाक पहने, लूका में लिखा है कि बुराक पोशाक पहने फरिश्ता को भेजा, और वो फरिश्ता उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। और उन औरतों से जब वो आई तो कलाम करने लगा, और कलाम करते हुए जब औरतें घबरा गई तो उसने कहा कि तुम ना घबराओ, तुम खौफ ना करो, क्योंकि तुम यीशु को ढूंढती हो। हालेलुया। पहरेदारों से नहीं कहा कि तुम मत घबराओ, या और लोगों से नहीं कहा कि तुम मत घबराओ, बल्कि उन औरतों से कहा जो यीशु को ढूंढती हैं। और फरिश्ता इस बात का तज़किरा भी किया कि तुम यीशु को ढूंढती हो, इसलिए तुम ना घबराओ। हालेलुया। आप जो यीशु को ढूंढने के लिए आज सब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सब आज की शहर में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका यीशु जिंदा है। हालेलुया। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। वो कहने के मुताबिक जी उठा है। और बाइबल मुकद्दस में इसी बात की 7वीं 8वीं आयत में लिखा है कि वो तुमसे पहले गलील को जाता है। हालेलुया। वो तुमसे पहले गलील को जाता है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहने के मुताबिक जी उठा है और वो अब्दुल अबाद हमेशा जिंदा रहेगा। यीशु की मौत और उसके जी उठने को लेकर फकीरों और फरीसियों के बहुत सारे सवालात रहे। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, शहादा का यानी 1 हफ्ता कल कि वो सलीब पर जान दे जी उठे, उसको जब यरूशलेम में दाखिल होना पड़ा तो यरूशलेम में दाखिल होते हुए फकीरों और फरीसियों ने कहा कि लोगों को चुप करवा, क्योंकि ये बहुत शोर करते हैं। यीशु ने कहा कि अगर आज ये शागिर्द और लोग चुप कर गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ यीशु की यरूशलेम के आमद के मौका पर, बल्कि जब यीशु ने सलीब पर जान दी, जब सलीब पर जान दे दी, उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फकीहों और फरीसियों ने कब्र के ऊपर पहरे बिठा दिए। जब यीशु कब्र के अंदर उतरा, उन्होंने कहा कि हमें डाउट है, हमें शक है कि यीशु के जो शागिर्द हैं वो उसकी लाश को उठाकर ले ना जाए और फिर ये वावेला करेंगे कि यीशु जी उठा है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि फरीसी
झूठ के बुलंदे, वो झूठ की इमारतें खड़ी करते रहे। इस बात को याद रखें कि वहां पर पहरा बिठा दिया गया, कब्र के ऊपर पहरादार मौजूद है, फरिश्ता ने उनसे कलाम नहीं किया। और आप लूका तबीब का इंजीली बयान देखें, उनके आखिरी अबवाब में तो वहां पर लिखा है कि निगहबान कांप गए और मुर्दा से हो गए और सारा माजरा देखा और जाकर ठीक जाकर बताया। और फिर उनको उकसाया गया कि जाकर कहो कि हम कब्र में थे, और इस तरह से उसके शागिर्द आए और उसकी लाश को उठा कर ले गए। आज लोगों में तरह तरह के लोगों में रवायात हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं हिस्ट्री से लेकर अब तक कि यीशु ने फला काम किया, कोई लाश को चुरा कर ले गया। लेकिन इस बात को याद रखें कि यीशु कहने के मुताबिक जी उठा है, और पहली गवाही जो है वो फरिश्तों की है। उसके बाद 5 के करीब औरतें थी जो कब्र के ऊपर खुशबूदार चीजें रखने के लिए या लगाने के लिए जा रही थी। उन्होंने इस बात की गवाही जाकर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने साहिबुल अंबिया में देखते हैं कि उन्होंने जाकर पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की। और इंजील यही है कि यीशु मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आप चारों अनाजील का आगाज देखते हैं, किसी में यीशु की पैदाइश के बारे में थोड़ा लिखा है, किसी में ज्यादा लिखा है, किसी में कोई मौजज़ा लिखा है, किसी इंजील में कोई मौजज़ा लिखा है। लेकिन चारों अनाजील का इख्तिताम जब आप देखते हैं तो चारों अनाजील का जो इख्तिताम है वो एक ही बात पर है कि यीशु बनीनो इंसान के लिए, कुल जहां के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और सौंठ फरमा गया है। और चारों अनाजील में उसका वादा भी नजर आता है कि मैं दुनिया के अब से लेकर आखिर तक दुनिया में हमेशा तुम्हारे साथ साथ हूं। हालेलुया। ये उसका वादा है। मेरा ईमान है कि यीशु यहां पर मौजूद है। उसकी मौत पर फतह, कब्र पर फतह से हम किन किन चीजों पर फतह पाते हैं, हम मखलिसी पाते हैं गुनाहों से। किताब मुकद्दस में लिखा है तीतुस का आम खत उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत में कलमबंद है, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। आमीन। जो नेक कामों में सरगर्म हो। आज मेरे अजीजों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सनराइज की इस सर्विस में आपने फिजिकली अपने टाइम को दिया है। मैं ये समझता हूँ कि गौर से इस बात को सुने कि यीशु ने जब आपके लिए फिदिया दिया है, जब यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है, तो फिर वो इस बात का तकाजा करता है कि ये आप जो उसकी उम्मत हैं, जो आप जो उसके लोग हैं, आप जो उसके नाम से कहलाए जाते हैं, आप इब्लीस पर फतह पाएं और नेक कामों में सरगर्म रहें। हालेलुया। आज की सनराइज का मकसद यही है कि आप इस बात को समझें कि यीशु जी उठा है, आपके लिए उसने फिदिया के तौर पर अपनी जान दी है। लेकिन आपको एक काम करना है यीशु में रहते हुए, वो ये है कि आपने नेक कामों में सरगर्म रहना है, आपने अच्छाई करने में सरगर्म रहना है, आपने मुआफ करने में सरगर्म रहना है, आपने खुदा से मोहब्बत रखने में सरगर्म रहना है, आपने खुदावंद के साथ चलने में अपने कदमों को बाज नहीं करना, आपने अपने कदमों को खुदा की तरफ रागब रखने
रखना है, चलाए रखना है, अपना ध्यान खुदावंद यीशु की सलीब पर लगाए रखना है। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ कि यूसुफ के साथ इस्राएलियों ने बर्रों के खून को मुल्क मिस्र के अंदर बर्रे के खून को, मैदे के खून को यूसुफ के साथ यानी उस शाम के साथ अपने घर की चौखटों पर लगा दिया और मौत का फरिश्ता अंदर दाखिल ना हो सका। आज यीशु का खून जो गलगता के मुकाम पर फिदिया के तौर पर हमारे लिए वहां है, इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई ना तो यूसुफ के साथ कर सकते हैं ना किसी और चीज के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान के इकरार के साथ आप इस यीशु के खून को जो गलगता के मुकाम पर वहां अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हालेलुया। और इस खून को उतारने से ही आपकी मखलसी है, आपकी रिहाई है। बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल के इंजीली बयान में लिखा है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, इसको जिंदगी में लेता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु की मौत ने बाप के साथ मिलाप करवाया है। हालेलुया। यीशु की मौत ने, उसके जी उठने ने बाप के साथ मिलाप करवाया है। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, रोमियो 5वां बाब उसकी 10वीं आयत करीमा। रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का आम खुद, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत करीमा। किताब मुकद्दस में ये मरकूम है क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मिलाप हो गया, तो मिलाप होने के बाद हम उसकी जिंदगी के शब्द से जरूर ही बचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम जरूर ही बचेंगे। मेरे अजीजों, ये आयत इस बात की तरफ इशारा है कि दुश्मन इब्लीस पर फतह पा ली गई है। वो जो असल से आपका दुश्मन है, जो आपका दुश्मन है, जो आपके नस्लों का दुश्मन है, जो आपके घरानों का दुश्मन है, जो आपके यीशु में झुकने का दुश्मन है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है बावजूद दुश्मन होने के खुदा और उसके बेटे, खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मिलाप है। खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मिलाप है। यीशु की मौत खासाती मौत नहीं है। यीशु का मरना ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि दुनिया में तभी तौर पर बहुत से लोग मरते हैं, हादसाती तौर पर लोग मरते हैं, डेली बहुत सारी अमवात होती हैं। हम देखते हैं लोग पैदा हो रहे हैं, उसी तरह से लोग मर भी रहे हैं। यीशु का पैदा होना भी अजीब और उसका जान देना भी अजीब है। हालेलुया। हमने गुज़िश्ता हफ्तों में इसके बारे में सीखा है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमारा मिलाप करवा दिया। यीशु हादसाती तौर पर, यीशु तभी तौर पर नहीं मरा, बल्कि यीशु जब पैदा हुआ उससे पहले ही हम देखते हैं कि 351 मर्तबा बाइबल मुकद्दस में पेशगोइयां की गई है कि यीशु जी उठेगा, वो मरेगा, दफन होगा, मुर्दों में से जी उठेगा। यशायाह नबी 53 में भी आप देख सकते हैं कि वो बेजुबान मैदे की तरह, भवे की तरह उसको ले जाया जाएगा, बेजुबान रहेगा और अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो हमारे लिए अपने आप को खाली करेगा। आप ज़करिया में देख सकते हैं, दानिएल में देख सकते हैं और आप मज़ामीर में देख सकते हैं, आप पैदाइश में देख सकते हैं, आप मलाकी में देख सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारी पेशगोइयां यीशु ने भी अपनी मौत के हवाला से की और कुल मिला के 351 के करीब पेशगोइयां हैं जो हमें साहिबुल अंबिया यानी पुराने अहद के जो नबी थे, रसूल थे, उन्होंने की। फिर यीशु ने भी अपनी जुबान मुबारक से इन पेशगोइयों पर नजर डाली। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसने हमारा मिलाप करवा दिया है।
नहीं कि खुदा से दूर रहें, अब वक्त नहीं कि कभी हैकल में आ गए और कभी ना आए, अब वक्त नहीं। हमें यीशु अगरचे जी उठा है 2000 साल पहले, आज वो आपकी जिंदगियों में जी उठना चाहता है। हालेलुया, आज वो आपकी जिंदगियों में जिंदा होना चाहता है। जिंदा इसी तरह से होगा जब आप उसको जिंदगी में काम करने का मौका देंगे। हालेलुया, उसने शैतान इब्लीस मौत पर फतह पाई है। कुलसियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत मेरे साथ देखिएगा। कुलसे की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का आम खत उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत देखिएगा। किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की इस बड़ी फतह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि वो शरीयत के बारे में फर्क नहीं समझते और वो शरीयत को साथ लेकर चलने की कोशिश करते। मैं उनसे कहता हूँ कि शरीयत तो ठीक थी, अगर आप इसको साथ लेकर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं। कुछ मसीहानी गिरोह हैं हमें आज मसीहियत में नजर आते जो मसीहियत और यहूदियत को जोड़ते हैं। हाँ, मसीहियत और यहूदियत एक है, लेकिन यहूदियत हमारे लिए सीखने लायक है, यानी शरीयत हमारे लिए उस्ताद बनी है। नया नामा में लिखा है कि हमारे लिए उस्ताद बनी है सिखाने के लिए। सो इसलिए इस बात को समझे कि यीशु में जब हम आ जाते हैं तो हम छठे दौर में हैं। 7 अदवार बाइबल में नजर आते हैं, हम छठे दौर में हैं और ये छठा दौर जो है ये फजल का दौर है। और इस फजल के दौर के अंदर यीशु अल मसीह ने अपनी जान देकर किसी मेंढे बकरे के खून के वसीला से नहीं, क्योंकि शरीयत इसी का तकाजा करती है, लेकिन फजल जो है वो यीशु के खून के अलावा किसी खून का तकाजा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, फजल इससे बढ़कर है। सो इसलिए हम इस फजल को समझेंगे कि फजल क्या हुआ है, और फजल उसके पैदा होने से ज्यादा उसके जान देने से आप पर और मुझ पर हुआ है। हालेलुया, और वो फजल ये है कि उसने वो जो हजारों सालों से दुश्मन था, जो अदन के मशरिक के अंदर जो खुदा ने बंगला बनाया था, बाग बनाया था, उस बंगलों उस बाग के अंदर उसने आकर शैतान ने, इब्लीस ने सांप का रूप इख्तियार करके उस सारी खराबी को पैदा किया। हम देखते हैं कि हम काम आए, रसूल आए, लेकिन बचा ना सके। यीशु अल मसीह वाहिद है और हमें बचाने की कुदरत रखता है, उसने बचाया। और फजल के दौर के बाद हसानी का दौर है, हम इसके बारे में भी कभी सीखने की कोशिश करेंगे। सो उसने सलीब के सबब से, उसने मेंढों बच्चों के खून के सबब से नहीं, सलीब पर उसने क्या किया, उसने हमारे लिए जान दी है। अब आपके पास इख्तियार है कि आप इब्लीस पर फतह पा सकते हैं। हालेलुया, आप बीमारियों पर फतह पा सकते हैं। यीशु जी उठा है, आज वो आपकी जिंदगियों के अंदर जी उठना चाहता है। वो आपकी जिंदगियों से ये चाहता है कि आप उसको जिंदगी में पहली तरजीह दें। यही आज की संडे सर्विस का जो है वो मोटो है, मजमून है, नतीजा है, आज की इबादत का हमारा मकसद है, पर्पस है, एम है कि हम यीशु को जिंदगी में लें। और इस बात को हमेशा याद रखें कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया, और ये रूहों के इम्तियाज की तरफ भी इशारा है, इस नेमत की तरफ भी इशारा है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज की संडे सर्विस के लिए। उसने हमारा मिलाप करवा दिया है, मौत और कब्र पर फतह पाई है। पहला ग्रंथियों 15वां बाब उसकी 55 आयत में लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया, यीशु जी उठा है और वो ये चाहता है कि आप भी उसके साथ
साथ जी उठे, उसके साथ जी उठने के लिए उसको पहले जिंदगी में उठाना होगा। हालेलुया। जिस तरह पौलुस ने उठाया, उसने कहा कि अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। इससे बेशतर उसने ये कहा कि मैं घटता जाता हूँ, मसीह मुझ में बढ़ता जाता है। हालेलुया। जैसे जैसे मसीह में बढ़े, मसीह आप में बढ़े, आप घटते चले जाए, और फिर एक वक्त आएगा, ईमान का वो अव्वल दर्जा आएगा जिसमें आप ये कह सकेंगे कि अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया।